As the name suggests, managing styles. So we will be dealing with various types of styles that are present in MS Word. Now, what are these styles generally mean? Okay, just a minute. Somebody has joined. Okay. What does style generally mean? So, style is what? Style is a predefined or customized option that can be used for creating good looking प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स विथ लीस्ट एफर्ट, है ना। मतलब कि क्या है यहाँ पर कुछ ऐसे पहले से कुछ ऑप्शंस बनाकर दे दिए हैं एमएस वर्ड ने, पहले से कुछ स्टाइल्स बनाकर दे दी हैं उन्होंने। मैंने बोली ना आप अटेंडेंस ले रहे हैं ना सिस्टर। हाँ तो बोले जो जो नहीं करे वो बोल दो करे, उसको मैंने बोली तो। म्यूट म्यूट म्यूट। ओके, कहाँ थे हम? सो ये कुछ प्री डिफाइंड और कस्टमाइज्ड ऑप्शन होते हैं जिनसे हम गुड लुकिंग या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट टू विथ लीस्ट एफर्ट्स। कम से कम एफर्ट के साथ हम बहुत अच्छे गुड लुकिंग और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं एम एस वर्ड के स्टाइल्स का यूज़ करके। सो वेर यू विल फाइंड दीज स्टाइल्स? सो स्टाइल्स इज जनरली प्रेजेंट इन द होम टैब, all right, and in the home tab there will be an option of styles. So under this you will be finding various options related to the styles which are present in MS Word. As you can see, this is the styles group, and in the styles group these are the options that are pre-defined options which are given to us, and selecting any of these style will make our font look different, and the other things that we write inside it will also be having a specific type of font color and its bold and italics settings. So various types of settings automatically gets applied when we use the styles. So there are various types of styles which are given to us that we can use in our documents to make our document look more attractive, more appealing, and more professional. So use we can see various types of styles are available to us. Let us now see what are those. So if you think that these are the styles, these styles which are given to us are not sufficient for the document to make it look professional, so you are provided with one more option that can help us to make our document look professional or attractive. So just next to the styles group, uh, here you will find an option of change styles. Under the change styles, when you will be going to the style set option, so you will find various types of styles which are given to us. See, ये हमने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे ही हमने स्टाइल सेट पे क्लिक किया, सो वी कैन फाइंड दीज मैनी स्टाइल्स। मैं मार्क करके बता रहा हूँ, ये देखो, these are the styles which will be available to us. क्या क्या स्टाइल्स हैं तो चलो देखते हैं। डिस्टिंक्टिव, एलिगेंट, फैंसी, फॉर्मल, मैन्यूस्क्रिप्ट, मॉडर्न, न्यूज प्रिंट, पर्सपेक्टिव, सैम्पल, सिंपल, थैच, ट्रेडिशनल, वर्ड 2003, वर्ड 2010। ऐसी कुछ हमको स्टाइल्स पहले से दे रखी हैं जिनका यूज़ करके हम हमारे डॉक्यूमेंट को और प्रोफेशनल या और अट्रैक्टिव और या और अपीयरेंस में और ज़्यादा सुंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस। एज वी आर नॉट with the computers right now, so we cannot understand how these documents will look on MS Word, but if you have, so you can try these out on your computers, and if not, so if we get any time, if we get an opportunity to have these class in the lab, so we will be doing so, and we will understand these topics. All right, so this was it about the styles group which is given to us, and this chapter was this much only. Let us now see the exercise which is given to us. So dash is a dash are customized option for creating professional looking documents with the minimum efforts. So क्या आएगा? Styles. अगला, you can change styles by using the styles group under the home tab. Alright,
तो यहाँ पर ये दो ब्लैंक्स हमको दिए हुए हैं, क्या होते हैं स्टाइल्स, तो कुछ नहीं होते, ये सिर्फ कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम हमारे डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं या और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। और ये लुक देने में और इसको ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हमको एफर्ट्स भी ज़्यादा नहीं लगते क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, पहले से बने हुए हैं। सो इट वुड नॉट consume a lot of time for creating those documents. All right, so this was about styles, and now we are moving towards another interesting topic which is document template. अब document template क्या होता है, तो अब हम इसको समझते हैं। टेम्पलेट्स मतलब क्या, तो टेम्पलेट्स मतलब क्या होता है कि पहले से कुछ डॉक्यूमेंट्स ही बनाकर दे दिए जाते हैं। अभी क्या बना के दी थी, स्टाइल्स, मतलब आप स्टाइल अप्लाई करो और स्टाइल अप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो आपके डॉक्यूमेंट पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। अब आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो वो डॉक्यूमेंट अब उस स्टाइल में अब बनेगा जिस स्टाइल को आपने सेलेक्ट किया था। दैट वाज अबाउट स्टाइल्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पलेट। Now what is template? So template is what? Template are, we can say templates are some documents that are created by MS Word, and these templates are called as the fill in the blank document. मतलब क्या होता है, अगर आप कोई टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक एक वर्ड का डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर बनकर आ जाता है। समझना ध्यान से, ठीक है। एक ऑटोमेटिक, जैसे आपने किसी टेम्पलेट को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली एक डॉक्यूमेंट बनकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उस डॉक्यूमेंट में कुछ जगह पर ऐसे डैश 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 बने होंगे, उन डैशेस में आपको आपकी रिक्वायर्ड जो डिटेल्स आप फिल करना चाहते हो वो डिटेल्स आप वहां पर फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आपको रिज्यूम क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ रिज्यूम, ऑलराइट, सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ रिज्यूम यू कैन यूज अ रिज्यूम टेम्पलेट एंड मॉडिफाई ओनली द सेक्शंस दैट रिक्वायर चेंजेस। तो जैसे कि जब हम रिज्यूम क्रिएट करेंगे तो रिज्यूम क्रिएट करने के लिए उसमें रिज्यूम का टेम्पलेट होगा। सो व्हाट दैट रिज्यूम टेम्पलेट विल डू, it will create a document which will be having a complete formatting and complete settings of the text in the way a resume should get arranged, है ना। जैसे रिज्यूम में टेक्स्ट अरेंज होना चाहिए, जैसा रिज्यूम दिखना चाहिए, वैसा पहले से हमको एक डॉक्यूमेंट बनकर आ जाएगा। उसमें नेम का कॉलम खाली रहेगा, ब्लैंक बना होगा, वो ब्लैंक को आपको फिल करना पड़ेगा, आपका नाम, उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो भी ब्लैंक होगी, तो वो भी आपको फिल करनी पड़ेंगी। तो मतलब क्या होता है, इट क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट विथ अ फिल इन द ब्लैंक स्टाइल, है ना। एक फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब यही है कि आप जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो ब्लैंक छोड़ देगा और आप उन फील्ड्स को आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो एक बार डेफिनेशन को हम देखते हैं। Templates or document templates refer to a sample fill in the blank document that can help in saving time. Usually, templates are customized documents that may have sample content, themes, etc. For example, if you want to create a resume, you can use a resume template and modify the sections that require changes. मतलब वही है, ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा और वो जो डॉक्यूमेंट रहेगा, हाँ, वो एक सैम्पल फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें हम हमारे रिक्वायर्ड फील्ड्स को फिल कर देंगे। नाउ हाउ टू क्रिएट दिस, सो फॉर क्रिएटिंग दिस यू हैव टू गो इन टू द फाइल ऑप्शन। अंडर द फाइल मेन्यू यू हैव टू सेलेक्ट न्यू। जैसे हम फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमको वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके के टेम्पलेट्स हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये क्या किया इन्होंने सेलेक्ट किया कि हमको सर्टिफिकेट्स चाहिए, तो जैसे ही वहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स के नाम आए, सर्टिफिकेट, रिज्यूम, लेटर, ऐसे ऑप्शंस आते हैं, तो इन्होंने सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दिया। ये लिखा है ना यहाँ पर सर्टिफिकेट, तो इन्होंने सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दिया। जैसे इन्होंने सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, सो दीज आर ऑल द सर्टिफिकेट्स दैट अपीयर्ड ऑन आवर स्क्रीन और ऑन देयर स्क्रीन। जैसे उन्होंने सर्टिफिकेट्स पे क्लिक किया तो देखो ऐसे सर्टिफिकेट्स बने हुए आने लगे। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग सर्टिफिकेट्स यहाँ पर बने हुए हैं,
है ना, बहुत सारे अलग अलग सर्टिफिकेट्स के सैंपल्स ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं। हमको इसमें से जो सर्टिफिकेट सूटेबल लगता है वी कैन सिलेक्ट दैट सर्टिफिकेट। चलो, तो जैसे ही हमने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे हमको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखे, उन टेम्पलेट्स में से हमने सर्टिफिकेट पे क्लिक किया। सर्टिफिकेट पे क्लिक करने पर वी फाउंड दीज मेनी सर्टिफिकेट्स ऑन अवर स्क्रीन एंड नाउ वी विल सिलेक्ट एनी वन ऑफ द सर्टिफिकेट एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट अ सर्टिफिकेट ऑफ अवर ओन। जैसे कि इन्होंने किसी एक सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे कि ये वाला जो सर्टिफिकेट है, ये वाले सर्टिफिकेट पे इन्होंने क्लिक किया। एज सुन एज दे विल क्लिक ऑन द सर्टिफिकेट, सो अ न्यू डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन अवर एमएस वर्ड। इस तरीके का डॉक्यूमेंट हमारे एमएस वर्ड पर अपीयर होगा। यू कैन सी इन दिस डॉक्यूमेंट पहले से ही एक इमेज अप्लाइड है, ऑलरेडी कुछ कलर उस इमेज का है, उस इमेज के अंदर कुछ टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, बट जो फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, जो यूज़र चेंज करेगा, उन फील्ड्स को इन्होंने ब्लैंक छोड़ा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो योर हाई स्कूल। अब योर जूनियर हाई स्कूल मतलब यहाँ पर आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है, ये तो वो पहले से फिल करके नहीं रख सकता, सो दिस इज़ अ फिल इन द ब्लैंक, ये आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आपके स्कूल का नाम लिख सकते हो। नेम, तो नेम भी ये फिल इन द ब्लैंक है, आपको आपके स्कूल का आपका खुद का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, या कोई स्कूल है जो सर्टिफिकेट्स प्रिंट करके दे रहा है तो वो यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देगा, और उसके बाद यहाँ पर बच्चे का नाम लिख देगा, उसकी क्लास कौन सी रैंक सिक्योर करी, और भी जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई हैं वो सारी डिटेल्स वो एंटर कर देगा। इवन यू कैन सी हियर इज एन ऑप्शन टू प्रिंट द लोगो एज वेल, मतलब यहाँ पर स्कूल अपना लोगो भी इंसर्ट कर सकता है। तो ये होता है फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये होता है एक टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या, एक कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट जो कि फिल इन द ब्लैंक स्टाइल का होता है, जिसमें पहले से ही आपको एक बनकर डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर मिल जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट में जहां पर ब्लैंक्स होंगे, उन ब्लैंक्स में हम हमारी रिलेटेड डिटेल्स को एंटर कर देंगे, और उससे क्या होगा कि हमारा डॉक्यूमेंट कम एफर्ट्स के साथ कम समय में तैयार हो जाएगा। नाउ there are many templates we can say which are available to us, but if you are not satisfied with the templates which are given, so you can even download them. For downloading you are provided with these many websites: office.microsoft.com/templates, www.thepapermillstore.com, openoffice.blogs.com/openoffice/templates, एंड www.docstock.com। ये कुछ वेबसाइट्स भी हमको दे रखी है इन्होंने कि अगर इफ द templates which are given in MS Word are not sufficient, so we can even download those sufficients online, and we can find various templates created by Microsoft or created by the users and uploaded on the website. So ऐसे बहुत सारे templates हमको देखने को मिल जाएंगे। हम हमारे बनाए हुए templates भी चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, बट जो भी उसका प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा, और उस template को बाकी लोग भी डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने लिख कर भी दिया हुआ है, यू कैन विजिट द अबव मेंशन्ड वेबसाइट टू सर्च, डाउनलोड एंड यूज अ टेम्पलेट दैट सूट्स योर नीड्स। हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी टेम्पलेट सूटेबल है हम वो टेम्पलेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन अ टेम्पलेट कैन सेव यू time and effort because all the work it takes to design the document has already been done। सीधी सी बात है, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना टेम्पलेट पर जो बेस्ड हो, टेम्पलेट पर बेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में आपका टाइम, एफर्ट सब बचता है, क्योंकि यहाँ पर जितने एफर्ट आपको उसके फॉर्मेटिंग में लगाने थे वो एमएस वर्ड ने ऑलरेडी मतलब कि लगाए हैं, और वो टेम्पलेट क्रिएट करके दिया है ना, ये प्री डिफाइंड है, पहले से बने हुए हैं, तो ये टेम्पलेट्स आपको बनाकर दे दिए गए हैं। अब इसमें जो एफर्ट आपको लगाना पड़ता वो एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू विल सेव अ लॉट ऑफ एफर्ट एज वेल एज टाइम। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, बस आपका नेम, आपकी क्लास, और जो भी जो चीज़ क्रिएट कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी, आपको उन फील्ड्स को बस फिल आउट करना होता है, एंड दैट्स इट। इन वेरी लेस टाइम you will be creating
the documents or the templates as required. Alright, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है. You may use the template that come with word processing software or download templates created by other people or can also create and save your own templates for future use. चलिए देखिए एक और चीज़, हम हमारे खुद के टेम्पलेट्स भी क्रिएट करके सेव करके रख सकते हैं और उसको फ्यूचर में कभी यूज़ पड़े तो हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस सी how can we create our templates. So creating a template is just as similar as creating a new document in MS Word. द ओनली डिफरेंस इज, अगर आप जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट को जब हम सेव करते हैं, सेव करने के टाइम पे बस आपको चेंजेस करने हैं. डॉक्यूमेंट तो आप जैसे बनाते हो वैसे ही टेम्पलेट भी बनाओगे, नो चेंजेस इन इट. बट द मैजिक स्टेप यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, द मैजिक स्टेप इज वेयर यू सेव इट. जब आप इसको सेव करोगे वहां पे एक स्पेशल स्टेप आपको यूज करनी पड़ेगी जहां से आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो टेम्पलेट के फॉर्म में सेव हो जाएगा. तो वो स्टेप क्या होगी, फाइल में जाएं, फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेव एज में जाएं. सेव एज में जाने के बाद आपने देखा होगा कि वहां पर आपसे बोलता है कि डॉक्यूमेंट का नाम लिखो और उसके नीचे लिखा होता है सेव एज टाइप. तो डॉक्यूमेंट के नाम में तो आपको जो नाम लिखना है वो लिखना है. सेव एज टाइप में आपको सिलेक्ट करना है टेम्पलेट्स. सेव एज टाइप में आप लोग सिलेक्ट करेंगे टेम्पलेट्स और नीचे होगा एक सेव का बटन. सो आप लोगों को उस पर क्लिक करना है. तो क्या होगा, आपका ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया, ये डॉक्यूमेंट अब एक डॉक्यूमेंट ना होकर अब ये एक टेम्पलेट के फॉर्म में सेव हो जाएगा. अब ये तो हो गया सेव. अब इसको सेव करने के बाद इसको ओपन कैसे करेंगे, तो जैसे ही आप न्यू पे जाते हैं वहाँ पर जो टेम्पलेट्स दिखते हैं वहाँ पर एक माई टेम्पलेट्स का ऑप्शन भी होता है. एज सुन एज वी विल गो टू द माई टेम्पलेट्स ऑप्शन, तो वो माई टेम्पलेट्स ऑप्शन में आपकी क्रिएट हुए टेम्पलेट्स आपको वहाँ पर दिख जाएंगे. तो उसमें से हमने जो टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है हम वो टेम्पलेट को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा. बट अब बात समझो, आपने क्रिएट किया था टेम्पलेट, ठीक है, आपने क्रिएट किया था टेम्पलेट, उस टेम्पलेट का यूज़ करा आपने तो आपकी स्क्रीन पर MS वर्ड की स्क्रीन पे वो टेम्पलेट आ गया. सो अब क्या होगा, अब वो टेम्पलेट नहीं रहा, अब वो क्या बन चुका है, अब वो डॉक्यूमेंट बन चुका है. वो टेम्पलेट तब तक था जब तक वो वहां पर सेव्ड था. अब आप क्या कर रहे हो, उस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, है ना. तो यहां पर अब वो एक डॉक्यूमेंट रहेगा, कोई टेम्पलेट नहीं रहेगा. ठीक है, देखो यहां पर इन्होंने हमको बताया भी हुआ है उस चीज को, एक बार हम उसको पढ़ते हैं. नोटिस दैट दिस इज अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड इट्स नॉट अ टेम्पलेट, है ना. हमने जैसे ही हमारा टेम्पलेट ओपन कर लिया, अगली स्क्रीन पर हमारे MS वर्ड पर वो टेम्पलेट दिखने लगा, तो अब वो टेम्पलेट नहीं रहा, नाउ इट इज़ अ डॉक्यूमेंट. अब ये एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, टेम्पलेट वो तब तक है जब तक आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया. जैसे ही आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो MS वर्ड की स्क्रीन पर वो दिखने लगता है, तो वो अब क्या हो जाता है, नाउ दैट विल बी अ document. So we have just created a new document which is based on our own templates. ये हमारे खुद के टेम्पलेट्स पर बेस्ड एक नया डॉक्यूमेंट है जो हमने क्रिएट किया है. नाउ व्हेन यू हैव टू सेव दिस डॉक्यूमेंट इट गेट सेव्ड इन द नॉर्मल डॉक एक्स फाइल. तो ये एक नॉर्मल डॉक एक्स फाइल के फॉर्म में ये वाला आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा. और ये डॉक्यूमेंट कैसे बना है, तो ये डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स का यूज़ करके बना है. ऑलराइट, सो दिस वाज इट. आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है. अच्छा, तो आगे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, बाकी खत्म है ये चैप्टर. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर असेसमेंट में क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स रिफर टू अ डैश डॉक्यूमेंट. सो टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स रिफर टू अ फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट. ठीक है, इसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक. अगला देखते हैं. क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन अ डैश कैन सेव यू डैश. स्क्रीन ज़्यादा बड़ी हो गई, हाँ, बिकॉज डैश, इसमें तो काफ़ी डैशेस दिख रहे हैं, तो इसका आंसर हम देखते हैं कहाँ पर होगा. तो ये जो है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन अ डैश कैन सेव यू डैश बिकॉज डैश.
3 dashes are given to us. ये यहाँ पर दिया हुआ है, if you can see, ये देखो, creating a new document based on template can save you time and effort. ठीक है, creating a new document based on template can save you time and effort because all the work it takes to design the document has already been done. ये जो जो चीज़ें मार्क करी हुई हैं ये ब्लैंक में आएंगी. ठीक है, तो ये रहेगा वो ब्लैंक का आंसर. ऑलराइट, सो ये थे दो फिल इन द ब्लैंक्स, दो ये जो इस चैप्टर में हमको यहाँ पर दिए हुए हैं. आफ्टर दैट दे हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू सेशन विच इज़ वर्किंग विद पेज एंड सेक्शन ब्रेक. वी विल बी dealing with this session in our next class, and for today's class students, I think this is sufficient. We have already covered 2 of the sessions in it, so you just go through this video. I will be uploading it within 5 minutes to the group as well. So if some of the students who have joined the class late and they have missed out some of the topics, so they can go through those topics and understand them. And after that, if you still feel that some of the topics are not clear to you, so you can ask me and we will clear those doubts out. Alright, so students, thank you so much for today's class. If you have some doubts, you can ask right now or we will end the class.